Hello, class 7 students, and welcome back to your chapter number 1 of your Geography Social Science, that is your Geographical Diversity of India. And in today's chapter, we'll be going through the Himalayas. So, in the last video, we have did just the general introduction of this whole chapter and India's geographical features as a whole. And today, we're going to talk about particularly the Himalayas. Right, this is your topic, actually, topic number 1 in your book for this, and this will be your episode number 2 for this chapter. Okay, so let's get starting. Episode number 2, the Himalayas. Alright, so look at the length of the Himalayan range on the map. It is like a massive wall. Alright, from the legends, can you see and guess the altitude at the different points of the Himalayas? So, see, this is the satellite images of Himalaya. So, the Himalayas range is 2500 kilometer or 2500 kilometer. So, you can see these are the ranges pictures. If you could see clearly, these all are the ranges pictures of Himalayas, right? So let's get knowing about this. So it is 2500 kilometer. No, like length is that much, the range of it. The Himalayas seem to touch the sky. In fact, many of its peaks are over 800, sorry, 8000 meters in height. तो 8000 meters की हाइट से भी ज्यादा बड़ी बड़ी कुछ कुछ पीक्स हैं हिमालयाज की। हिमालयाज की बचा रेंज मतलब कि 2500 किलोमीटर मतलब कि इतनी रेंज में हिमालयाज है। ठीक है, 800 मीटर उसकी हाइट, 8000 मीटर उसकी हाइट है, एंड आर टुगेदर अबाउट 8000ers। तो मतलब जो हिमालयस 8000 के ऊपर है उनको हम कहते हैं 8000ers। जो ये है माउंटेन रेंजेस सिक्स सिक्स कंट्रीज में जाती हैं, सिक्स कंट्रीज ऑफ एशिया में जाती हैं। दैट इज इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है। In the summer, the snow on the mountain melts and feeds the major rivers such as Ganga, Indus and Brahmaputra। यानी कि जब गर्मियाँ होती है, जब समर होती है, तो जो रिवर है वो पिघलती है, मेल्ट करती है, और वो मेजर रिवर जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, इन सबको फीड इन द सेंस कि जो रिवर्स है इन सब पे जाके जो मेल्ट होती है आइस इन सब पे जाके मिलती है, तो इन सबको इन द सेंस उस पे जाके मिलते हैं तो फीड करते हैं, मतलब उस रिवर को फुलफिल करते हैं, फिल करते हैं। So these rivers and tributaries provide water for drinking, farming and industrial use, connecting with the lives of hundreds of millions of people। अब जो ये rivers और इनकी tributaries means जो rivers हैं and इनके बाद जो और divisions हो रहे हैं river के, है ना, likewise इन सारी चीज़ों का बहुत ही हमारी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल आता है, कैसे, क्योंकि हमें पानी पीने के लिए, इंडस्ट्रियल यूज में और बहुत सारी चीज़ों में पानी यूज होता है। हेंस जो हिमालय है उनको ये भी कहते हैं द वाटर टावर फॉर एशिया, ऑफ एशिया, सॉरी। So we can also call them as water tower of Asia. The Himalayas are also important in many cultural belief, many cultures and belief system, इसलिए भी important है। जो माउंटेन अपने आप में दे आर वेरी सीक्रेट, उधर बहुत सारे टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज हैं जो कि उधर दे हैव बीन बिल्टेड ऑन। वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स, स्पिरिचुअल सीकर्स जो पूरे अराउंड द वर्ल्ड, not only in India, around the world, they come for that and they go there to pray, to meditate and do whatsoever they want to do. So these all things are under Himalayas. So the first thing first is that it obviously gives us much water by melting the snow, giving us fulfilling building our river as Ganga and the Brahmaputra, which provides water for our day-to-day use of life, right? Daily use of life, we can get the water from there. Other than that, जो हिमालयस है उनको वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहती है। प्लस द थिंग इज दैट वो बहुत ही सेक्रेड एंड टेम्पल, सेक्रेड मोनास्ट्रीज बहुत सारी उसके ऊपर बिल्ड हैं, जो कि मेडिटेशन और प्रे के लिए बहुत सारे मॉन्क्स, रिचुअल सीकर्स और कुछ ज़्यादातर टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि भागीरथी रिवर जो मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम काउज माउथ इन उत्तराखंड, उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। इसका जो एज है इट इज गंगोत्री ग्लेशियर, एज गंगोत्री ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होके ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन द इंडियन हिमालयस में, बहुत ही सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, ये गंगोत्री ग्लेशियर के एज में आता है गौमुख, गौमुख से ये भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन जो कि आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप देखोगे गंगा को, गंगा नदी को देखोगे, तो आपको याद आना चाहिए कि कैसे वो बनी थी, कैसी उसका है, तो दिस इज योर गौमुख, राइट।
ये आपका है गोमुख, ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर से कमेंज में आता है, क्या गंगोत्री, और जहाँ से आपकी भागीरथी रिवर ओरिजिनेट करती है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हिमालय से वो फॉर्म हुए, हाउ दे वर फॉर्म। So, a long time ago, India was a part of a much bigger landmass called Gondwana, where it was, where its neighbor was Africa. तो अफ्रीका के साथ आपका जो इंडियन लैंडफॉर्म था वो जुड़ा हुआ था, ठीक है। और तब इसको हम गोंडवाना कहते थे, और कुछ टाइम बाद एट सम पॉइंट वो टूटा उधर से, एंड स्लोली स्लोली वो थोड़ा बहुत नॉर्थर्न रीजन में आने लग गया, ठीक है। ओके, वो धीरे धीरे नॉर्थ रीजन में आने लगा। प्लस उसके बाद 50 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 50 मिलियन ईयर्स बाद में व्हाट हैपेंड इज कि जो लैंडमास था यूरेशिया का, यानी कि इसको हम यूरेशिया कह रहे थे, जो लैंडमास था वो जाके किससे टकराया, यूरेशियन प्लेट से। इसको यूरेशिया कहते हैं, इंडियन लैंडमास था कि जाके टकराया, यूरेशिया से कोलाइड किया, राइट, टकराया। उसके बाद एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, जब इंडिया ने यूरेशिया प्लेट्स को वो किया, क्या किया बच्चा, जब इसे टकराया तो जो लैंड उनके बीच का था वो क्रम्बल हुआ, क्रम्बल इन द सेंस वो थोड़ा टकराया और बहुत टूटा फूटा वो क्रम्बल हो गया अंडर डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल जो लिखा है वही मेरे दिमाग में आया, दैट इज हाउ अ कारपेट रिक्टर्स एनी प्रोसेस। जैसे आप दीवार है एंड एक कारपेट या कोई मैट ही रख लो लेट्स से, तो मैट को अगर आप जितना उसके पास करोगे तो मैट जो है थोड़ा क्रम्बल होकर थोड़ा ऊपर हो जाएगा, राइट। उसी हिसाब से एशियन प्लेट से जब इंडिया टकराया, इंडियन लैंडमास टकराया, तो जो इंडियन लैंडमास की प्लेट थी वो थोड़ी बहुत क्रम्बल हो गई एंड वो ऊपर हो गई, है ना, ऊपर उठ गई। ऐसे ही बच्चे हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म हुए थे, ठीक है। तो जो गोंडवाना रीजन यानी कि अफ्रीका से आपका इंडियन लैंडमास आया, सीधा जाके यूरेशियन प्लेट में टकराया, लैंड रोज अप हुआ एंड हिमालयास वर फॉर्म। अमेजिंगली जो इंडिया है, इंडिया स्टिल पुशिंग इनटू एशिया वेरी स्लोली, इंडिया भी धीरे धीरे और एशिया प्लेट के अंदर अंदर घुसती जा रहा है, घुसते जा रहा है, पुश कर रहा है उसको अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर, यानी कि 5-5 सेंटीमीटर करके हर एक साल में ये आपका थोड़ा थोड़ा जा रहा है, जो कि बहुत ही स्लोअर है, बहुत कम रेट में जा रहा है, जितना आपके बहुत स्लोअर द रेट देन योर हेयर ग्रोस, बाल जितने ग्रो करते हैं उससे भी बहुत स्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हिमालय से वो धीरे धीरे और टॉल हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, बहुत ही थोड़ी बहुत टाइनी बिट ऑफ ईयर, यानी कि थोड़े थोड़े हर एक साल में थोड़ा थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा अबाउट 5 मिलीमीटर ईच, बट ओवर अ मिलेनियम दैट एड्स अप टू 5 मीटर, यानी कि इतने सालों बाद में वो 5 मीटर के अराउंड में हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू केयर अबाउट। आगे हम बात करें बच्चे, तो इसकी तो इन दिस वी विल आल्सो गोइंग थ्रू कि इसमें और हमने क्या किया है बच्चे, कि यहाँ पे जो लैंड मास था यहाँ पे जाके टकराया थोड़ा थोड़ा, जैसे टकराया वो थोड़ा थोड़ा और 5-5 सेंटीमीटर हर एक साल में, विच इज पुशिंग अगेंस्ट इट, और जो थोड़ा थोड़ा जो हिमालय जरूर वो रखे ऑलरेडी वो थोड़े थोड़े और राइज होते रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको फोल्डेड लेयर्स दिख रही होंगी हिमालय की, जो कि ये बताता है कि ये कैसे फॉर्म हुआ था, दिस इज अ प्रूफ ऑफ इट। फोल्डेड लेयर्स ऑफ हिमालय रॉक यहाँ पे मैं आपके पास लेके आया हूँ। जो बेटा हिमालय है, द वर्ड हिमालय आपका दो संस्कृत वर्ड से बना है, ठीक है, दो संस्कृत वर्ड से बना है। पहला है हिमा, हिमा मतलब कि स्नो, स्नो है, और नेक्स्ट है आलाया, अलाया मतलब कि अबोड और ड्वेलिंग, मतलब कि इट इज अ रीजन ऑफ इट, ड्वेल यानी कि यहाँ पे, so that is why it is also called abode of snow, right, हिमालय, ओके, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हिमालयस है, हिमालयस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन 3 टाइप ऑफ रेंजेस और 3 मेन रेंजेस में, यानी कि हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं। द 3 आर हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। फर्स्ट इज द हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालय, जो कि हाईएस्ट है और बहुत ही ज्यादा यानी कि रफ पार्ट है ऑफ द रेंज, और ये बहुत ज्यादा टावरिंग पीक्स का होम है, यानी कि यहाँ पे सबसे ऊंची ऊंची जो पीक्स हैं, टावरिंग पीक्स हैं, वो यहाँ पे है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारा कुछ यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है ये आपका सबसे हाईएस्ट या ग्रेटर हिमालयाज में आती है, जो कि एकदम ही हाइट में है। जो ये इस रीजन में होते हैं ये सारे हिमालयाज, ये सारे स्नो कवर्ड, यहाँ पे वही लिखा है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि यहाँ पे इतनी ऊंचाई में है तो यहाँ पे ठंडी रहती है, तो यहाँ पे जो लाइफ है एज एन ह्यूमन इज वेरी टफ, एंड यहाँ पे कोई भी ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि लोग यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते हिमालय में, ऑलराइट। नेक्स्ट इज हिमाचल, दैट इज लोअर हिमालयस कंपेयर टू द ग्रेटर हिमालयस। तो ये जो हिमालय है थोड़े साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयस में आते हैं, यानी कि हिमालय से थोड़े साउथ में जो ग्रेटर है,
और मॉडरेट क्लाइमेट होता है इनका, ज़्यादा इनकी रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, ह्यूमन हैबिटेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन लोग रहते हैं, ये थोड़े बहुत हाइट में होते हैं बट उन लोगों से थोड़े कम हाइट में होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन जो हैं जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं वो है, जैसे कि नैनीताल है, राइट, नैनीताल उत्तराखंड में, दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, शिमला है हिमाचल प्रदेश में, मसूरी है उत्तराखंड में। ये सारे लोकेटेड रीजन्स हैं इस में आते हैं जो कि है हिमाचल में, ठीक है, दीज आर द लोअर हिमालय जिसको हम ये भी कहते हैं। नेक्स्ट मेरा बेटा आता है शिवालिक। शिवालिक इज द आउटर हिमालय, ठीक है, यानी कि आपके आउटर हिमालय हैं जो कि आपके एकदम आउटर मोस्ट एकदम बाहर का, और जो सबसे नीचे वाली रेंज है उसको कवर करते हैं। इधर में रोलिंग हिल्स है क्योंकि यहाँ पे जो थोड़े बहुत जो एकदम छोटे छोटे बने थे तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ऐसे हिल्स हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे जो फुट हिल्स है यहाँ पे फुट हिल्स इन द सेंस कि जहाँ पे हिमालयाज है, यहाँ के जो यहाँ पे हिल्स हैं वो, जो फुट हिल्स हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड लाइफ रिच है, यानी कि यहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत हैं एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जानवर भी हैं। तो इट इज़ सर्विंग एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन हिमालयाज एंड गैंगेटिक प्लेन्स। तो शिवालिक के बाद बेटा हिमालयाज और गैंगेटिक प्लेन्स यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में ट्रांजिशन आ जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पे हिमालयाज प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका प्लेन रीजन आता है, तो ये जो ट्रांजिशन आता है ये आपका शिवालिक के मतलब ये ट्रांजिशन के बीच में आपका शिवालिक हिल्स आते हैं, ठीक है मेरा बेटा। ये होते हैं शिवालिक हिल्स, दिस इज द लोअर एंड मोस्ट आउटर मोस्ट रेंज। नेक्स्ट इज कैन यू लोकेट द नेम ऑफ स्टेट एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द हिमालयस, टेक द हेल्प ऑफ बोथ फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप। तो हमें बताना है क्या क्या नेम्स हैं। सो द हिमालयन माउंटेन रेंजेस स्ट्रेचेस अक्रॉस सेवरल नॉर्दर्न स्टेट्स, जो सारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उसमें बहुत सारी स्टेट्स में जाता है। इन द वेस्टर्न पार्ट हिमालय पास थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो जो वेस्टर्न पार्ट है यानी कि इन योर वेस्टर्न साइड जो आपका है यानी कि नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड कह लो, वहाँ पे आपका हिमालयाज जो होता है वो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आता है। और अगर हम ईस्टर्न पार्ट को देखें तो बेटा वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी जाता है। These mountain ranges are very much important as they are the source of many rivers and contain forest, wildlife and tourist destination. ये जो माउंटेन रेंजेस है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बेटा पानी बहुत अच्छा है, रिवर बहुत सारी है, मेनी रिवर्स यहाँ से ही ओरिजिनेट होती हैं। देयर आर मेनी रिवर्स हियर, देयर आर वेरी मच फ्लोरा फौना मींस बहुत टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा है, फॉरेस्ट है, और वाइल्ड लाइफ भी बहुत है, तो सारा कुछ है। नेक्स्ट इज द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया मसूरी, नैनीताल, शिमला, ये सारे भी यहाँ पे हैं, दार्जिलिंग, है ना। तो हिमालय जो है ये भी क्या करते हैं, ये ऑल्सो करते हैं क्या, ये रेनफॉल भी करते हैं, रेनफॉल भी करवाते हैं इन सेंस, क्यों, क्योंकि ये जो मानसून की जो विंड्स हैं, जो हवा जो बारिश की है, बारिश के लिए है, उनको रोक लेते हैं, एंड जब वो रोक लेते हैं तो रेन इज बीइंग कॉज्ड, so that is what it is। ये लोग also they are the reason which helps causing rainfall by blocking monsoon winds, यहाँ पे भी यही लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालयन रीजन इज नोन एज काठकुनी और दज्जी देवारी। तो ये काठकुनी हाउस है जो आप देख सकते हो, अगर आप कहाँ पे भी रहते हो आपके इसके पास फोटो होगी, नहीं तो आप और भी जगह जगह जा सकते हो इफ यू हैव एनी म्यूजियम आउटसाइड लाइक इन योर नियर योर हाउसेस। जैसे इफ आई नो, मैं एक म्यूजियम गया था, आई डोंट लाइक नो द नेम राइट नाउ बट वहाँ पे दिल्ली में था म्यूजियम, वहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल था, रिप्रेजेंटेशन था ऐसे हाउस का। तो ये जो हाउस है बच्चा ये ज़्यादातर वेस्टर्न हिमालयन रीजन यानी कि जो आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इस वाले रीजन में पाया जाता है। इसको हम काठपुनी या डजी दीवारी स्टाइल ऑफ हाउस भी कहते हैं। ये जो है ये लोकली अवेलेबल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी कि जो भी चीज़ जो भी मटेरियल लोकली अवेलेबल हो यानी कि आसपास अवेलेबल हो वहाँ से ही बनता है। जैसे कि ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो है स्टोन एंड वुड, यानी कि जो पत्थर और लकड़ी के हिसाब से बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ हाउस को गर्म करने के लिए नहीं बट ऑल्सो रेजिस्ट डैमेज इन द इवेंट्स ऑफ माइल्ड अर्थक्वेक, यानी कि ये सिर्फ आपके घर को गर्म नहीं रखता है, लाइक इट डजंट ओनली कीप योर हाउस वार्म, बट ये आपका जो अगर अर्थक्वेक यानी कि भूचाल वगैरह भी आता है तो उसमें भी घर की बचाव करता है, यानी कि प्रोटेक्ट एंड रेजिस्ट डैमेज, यानी कि कोई भी डैमेज होने से, खराबी होने से, तोड़फोड़ होने से रोकता है। दैट इज व्हाट इट इज, योर काठ कोडिंग और डची देवारी हाउस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश।
नेक्स्ट इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, विच इज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्लोरा एंड फौना है। यहाँ आप देख सकते हो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क में, यहाँ पे आपको फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया यहाँ पे है ये। ओके, नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे है हिमालयन मोनल, यानी कि जो मेल है वो आपको यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है मोनास्ट्री, मोनास्ट्री यानी कि जहाँ पे लोग स्पिरिचुअलिटी वगैरह ये सब है, ये आपके लद्दाख में सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर आप ये देखोगे, जो ग्रीन सा इतना प्यारा सा लैंड है, ये ब्यास रिवर है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल साइट टू सी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज योर स्नो लेपर्ड, राइट, ये आपका स्नो लेपर्ड है, विच इज अगेन एन एनिमल एग्जांपल। नेक्स्ट इज डिस्प्ले ऑफ प्रोड्यूस, जो कि आपका लोकल मार्केट में है हिमालयाज के, वहाँ पे यहाँ पे लोकल प्रोड्यूस यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि आपके हिमालयाज में चीजें हैं। नेक्स्ट इज आपका दैट इज रोड एंड ड्रोन, जो एक टाइप ऑफ शरबत है, शरबत आपका जो कि फ्लावर से बना है, उससे है, उससे बनता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया है बाय यूनेस्को। द बायोडाइवर्सिटी पार्क of the park is being preserved by the government as well as the village community that live inside the park। तो जो इसकी पार्क की कंजर्वेशन है, यानी कि इसको जो बचा के रखता है, नॉट ओनली द गवर्नमेंट जो इसकी बायोडाइवर्सिटी को पार्क की प्रिजर्व करती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी मीन जितना ये डाइवर्स है फॉर योर दिस थिंग्स, फॉर योर फ्लोरा एंड फौना, उसी के साथ साथ ये सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बट ऑल्सो द विलेजेस, जो इसके आसपास कम्युनिटीज हैं विलेजेस की, उसको भी ये मतलब दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड। ठीक है, ठीक है। आगे जो है ये है आपका कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड गैंगेटिक प्लेन को हम उससे भी अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए मेरे बच्चा इतना ही, जिसमें हमने आज सीखा क्या क्या है, विच वी हैव लर्न द हिमालयाज के बारे में एंड इसके बारे में। बट द कोल्ड डेजर्ट बच्चे आई आल्सो टू ट्राई टू डू द पार्ट इन हियर ओनली, अभी टाइम मेरे पास है थोड़ा। सो लेट्स डू कोल्ड डेजर्ट है, बिकॉज द कोल्ड डेजर्ट पार्ट आल्सो कम्स अंडर द हिमालय ओनली। तो जो वर्ड डेजर्ट है वो एक्चुअली आपकी इमेज आपकी आएगी हॉट इमेज, यानी कि गर्म जगह की इमेज आएगी, बट वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट भी है और ऑल्सो हमारी इंडिया में भी है, दैट इज लद्दाख। तो लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट जहाँ पे जो विंटर विंटर का टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे कभी कभार चले जाता है, राइट। सो दैट इज राइट इज अ कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है और जो लैंडस्केप है बहुत ही रफ है, बहुत ही रफ, ठीक है, बहुत ही रॉकी टेरेन है, यानी कि बहुत ही नोकीले काइंड ऑफ टेरेन है, आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। पीक वैलीज मतलब कि माउंटेन है, फिर कम वैलीज जो है बहुत ही गहरी है, राइट। जो लेक है जैसे कि पेंगोंग लेक है, पैंगोंग तसो जिसको कहते हैं, तसो मीन्स लेक ओनली, सो पैंगोंग लेक है ना लद्दाख की। यहाँ पे आपकी थ्री इडियट्स वगैरह की भी शूटिंग हो रखी है फॉर देयर फाइनल क्लाइमेक्स सीन, राइट। जस्ट एन फन फैक्ट आई एम टेलिंग। अदर देन दिस, जो टेरेन है ये ऑल्सो मून को भी रिजेम्बलेंस देता है, क्यों, क्योंकि इसको मूनलैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये इतना टाइप ऑफ वैसा सा जो है, जो उसकी जैसे रेफरेंस, यानी कि उसकी जैसे आपकी इमेज वैसी बनती है। नेक्स्ट जो है जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट ये भी एक्सप्लेन करते हैं जो फॉर्मेशन है इस टेरेन की, जो हमने आगे देख रखी है। द फैक्ट इज जो माउंटेन्स है बच्चे फोल्डेड है, फोल्डेड है क्यों, क्योंकि जो इंडियन लैंड मास था वो यूरेशिया से कोलाइड हो गया था। कोलाइड कोलिजन के बाद जो है लैंड हुआ फोल्ड, राइट। जो फोल्डेड लैंड है वो आपको यहाँ पे भी दिख सकता है, ठीक है। जो फोल्डेड पोर्शन है दैट वाज अ पार्ट ऑफ एन ओशन एंड सो द रॉक इन दिस एरिया। तो जो फोल्डेड रीजन था वो उसका क्या पार्ट था, देखो बच्चे, जो इंडियन लैंडमास था वो चाहे ऐसे था, लाइक आई एम जस्ट शोइंग यू द ऐसा पार्ट, लेट्स से ये इंडियन लैंडमास है। तो बच्चा ये जो चीजें थी, मान लो यहाँ पर ओशन था, तो जब वो टकराया ये तो ओशन के नीचे था, बट जब वो टकराया ना यूरेशिया प्लेट से, लेट्स से यूरेशिया प्लेट इतना था, ठीक है। अब टकराएगा तो ये पोर्शन भी आगे आएगा, तो ये जो पोर्शन था ना बच्चे, दिस ऑल्सो केम एज अबव, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, आई जस्ट शो यू 1 मिनट। तो जो ये पोर्शन था, लेट्स से आपका ऐसे ऐसे हो गया, ये आपकी यूरेशिया प्लेट। तो बच्चा ये वाला जो पोर्शन था ये तो ऊपर उठ गया, सो ये जो पोर्शन था ये आपका ओशन का पोर्शन था, ओशन का पोर्शन था जो कि आपका एज एन ऊपर आ गया। तो जो अब यहाँ पे रॉक्स बनी है इस एरिया में, दैट इज अ पोर्शन ऑफ योर अर्लियर ओशन, राइट। ये आपका मूनलैंड है, दैट इज इन योर लद्दाख रीजन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखनी होंगी याक्स, याक्स यहाँ के लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पीपल हियर, फॉर द लाइव्स ऑफ पीपल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनको हम यूज करते हैं, यहाँ पे इन द सेंस लद्दाख में इनको हम यूज करते हैं टू फॉर द मिल्क, फॉर द मीट, यानी कि इनको हम खा भी सकते हैं, इनसे हम दूध भी हमें मिलता है, फॉर वुल एंड फॉर डंग। डंग मीन जो इनके लोग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वट एवर देयर इज, जिसको ये लोग गर्म रखने के लिए, लाइक वट एवर दे प्रोड्यूस इट ऑल्सो हेल्प्स देम फॉर योर their waste management and each and everything, right।
इसको अगर आग वगैरह लगाने में भी इट ऑल्सो ऑब्वियसली हेल्प्स देम, और ये बच्चे ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं, है ना। सो ईच केस में एंड से शुरुआत से लेके एंड तक दे आर अ रिसोर्सफुल रिसोर्स थिंग यहाँ के लोगों के लिए, और द लद्दाख पीपल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल साइट है, दैट इज योर पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक है गाइस, यहाँ पे जो लेक है इट इज सॉल्टी वाटर, अनलाइक मोस्ट अदर लेक, यहाँ पे सॉल्टी वाटर है, ये फ्रेश वाटर नहीं है जो आप पी सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो हिमालयन रीजन में बहुत ऐसे होता है, बट दिस इज सॉल्टी वाटर है। जो सॉल्टनेस है ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट है, यहाँ पे सराउंडिंग के जो माउंटेन रीजन है इधर बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब जो मिनरल्स है उससे अंडर वाटर ही है, लैंड के नीचे ही है, और लैंड के ही नीचे बच्चा पानी भी है। तो उसके थोड़ा बहुत मिक्सर से मिक्स होने से डिजॉल्विंग रीजन से, मतलब रीजन से डिजॉल्व होकर थोड़ा बहुत इट इज फॉर्मिंग सॉल्टी वाटर या सॉल्टी लेक। ऑलराइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी, यू हैव सीन थ्री इडियट्स, तो यहाँ पर ही आपका वो लास्ट वाला सीन, स्कूटर वाला सीन हुआ था, ठीक है, जिसमें आपका आमिर खान, करीना कपूर वगैरह का सीन जो हुआ था लास्ट, दिस इज जस्ट फैक्ट, यू कैन जस्ट सी द पिक्चर का क्लाइमैक्स, जहाँ पे आपका लास्ट में जो होता है उसको पता चलता है कि ओ ही इज द रियल पर्सन ही इज ट्राइंग टू मीट एंड एवरीथिंग। सो ये तो बात हो गई फिल्म की, अब बात आते हैं चैप्टर। सो ये जो रीजन है बहुत ही ज्यादा सैंड और क्ले से बना है। यहाँ पर जो विंड और रेन की वजह से बहुत ज्यादा जो माउंटेन का रीजन है वो एकदम ही अच्छे से शेप ले चुका है। नहीं तो फोल्डेड रीजन ऐसे ऐसे होता, बट इरोजन से, यानी कि जो हवा से पानी से इरोजन हुआ, इतना अच्छा अच्छा शेप ले चुका है। डिस्पाइट जो हार्श कंडीशन है, यानी कि इतने ताबड़तोड़ कंडीशन है रहने की, क्लाइमेट की वगैरह की, वो सब लद्दाख में, लद्दाख इज देन ऑल्सो होम टू मेनी मच वाइल्ड लाइफ, जैसे कि लेपर्ड्स, नो लेपर्ड्स, इबिक्स एंड टिबेटन एंटेलोप्स, इन सबका घर है क्या, इन सबका घर है लद्दाख, ठीक है। जो लद्दाखी पीपल, सॉरी, जो लद्दाखी पीपल है वो दे ऑल्सो दे लिव वेरी 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 सिंपल लाइफ। दे डोंट गो हियर, दे डोंट लाइक, दे डोंट यूजुअली interfere with others, they live a very simple sober life। और जो रीजन है, दिस रीजन इज नोन फॉर इट्स एंशिएंट मोनास्ट्रीज एंड कलरफुल फेस्टिवल। जो ये रीजन है इसको एंशिएंट मोनास्ट्री, जहाँ पे मोनास्ट्रीज हैं उसके लिए याद किया जाता है, और ये कलरफुल फेस्टिवल जैसे कि लोजर एंड हेमिस फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, जिसके लिए इस रीजन को अगेन देन ऑल्सो याद किया जाता है। सो फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस एपिसोड, आज के लिए बच्चे इतना ही। I'll just do the Gangetic Plains in our next upcoming lecture. So for today's lecture, this much only. We'll try to cover other things in our next episodes. Okay, and that is how your geographical diversity of India का episode number 2 में हमने हिमालयाज के बारे में पूरा पढ़ा। In our next video, we'll go to move through the next topics of the chapter. So for today, thank you and goodbye till we meet again.